Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Good morning, Good sir. morning. We are fine, sir. Morning, What sir. We are about fine, sir. you? What about you? I'm also fine, beta. Beta, in today's English session, we are going to study the writing junction of your chapter number 7 from the book, from your English book. So first of all, let me open the book. So beta, in chapter number 7, this is the writing section where we learn that how to frame some of the sentences. There is an activity in this section. You all are supposed to make a paper lantern, which was already given to you all. This activity was already given to you all, and you all were asked to make a paper lantern and paper fan, because Yes, sir. both the activities already given in the writing section in book B and book C. तो आप लोगों ने बनाया भी था, कई लोगों ने फोटो भी भेजा, and also you all were asked to write the steps कि कैसे आपने इसको बनाया है. वो सारे steps लिखने के लिए भी बोले गए थे. कुछ लोगों ने लिखा है या नहीं? How many have written this step? ठीक है, जिन्होंने लिखा they can speak, they can tell that कि how they have formed this, how they have made a paper lantern, what was the materials, what were the required materials, and they can speak step by step process. So who is going to tell about the paper lantern? Yes, Shanuka. Sir, the first, sir, to make a paper lantern, first have to take paper, pencil, scissor, ruler, glue or any type of glue or tape. Then take a paper and cut a line from it. Then fold that paper Beta, stop. from the middle. Shanuka, one more thing. Yes, sir. Step by step आपको एक पहला step सर बोलना है. What are the required material already you have spoken? Now, Yes, sir. there are, Sir, first, beta Sanuka, let me complete. There are 10 steps, at least 10 lines should be there. 10 lines you all need to speak. You do not have to speak all and every line, just only you have to write what you have written for the first step. I will come to the each students. Everybody have to speak. Yes, first step, what you have written for the first step. Sir, in first step, take a paper and in second, cut a line from that paper. No. In third step, we have बेटा to what fold you are that telling paper from शांता, the only middle. first step you are need to tell. मैंने एक बार बोला सिर्फ एक ही स्टेप बोलना है. फर्स्ट पहले स्टेप में पेपर नहीं लिया जा रहा है. Something else is going on. What is going in the first step? Sir, make a line from make a line in the top of that paper. Yes, draw a line along the edge of the paper. First of all, we have to take a paper. जो required material है already you have speak. सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा कैसे सानिका ने बोला कि पेपर, पेंसिल, scissors, rulers and glue or tape are required for lantern activities, for making a paper lantern. जितनी सारी चीजें लेने के बाद what you have to do? First of all, you need to draw a line along the top edge of the paper. पेपर के टॉप एज पे, किनारे पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. Thereafter, अनुप्रिया, step 2. Thereafter, we have to cut the line that we had drawn. कट द लाइन नहीं होगा, कट द पेपर. पेपर को कट करेंगे, लाइन को कट करेंगे. The paper. क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कट द पेपर. We have to cut the paper we have to cut the paper. बेटा पेपर को कहां से कट करेंगे? ऑल्सो यू नीड टू टेल. कट द पेपर अलोंग द लाइन एंड कीप इट असाइड. जो आपका यहाँ पे है इस लाइन पे, इस लाइन के रास्ते कहीं पे भी कट कर दो, ऐसा नहीं है. आपको इसे लाइन पे ही काटना है. स्टेप 2 में जैसा शो किया गया है, कट द पेपर अलोंग द लाइन. ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? Yes. नाउ कम टू द स्टेप 3. अनुष्का, thereafter. अमन वर्मा, तनिष्का की आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए.
cut draw a vertical line in between the paper. वेरी गुड. ड्रॉ अ लाइन इन द मिडिल इन द पेपर कह सकते हैं, इन बिटवीन द पेपर आपने बोला, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, आफ्टर स्टेप 3 ये मिडिल में आपका एक लाइन ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू? तनिष्का, यू कैन अगेन ट्राई. Sir, fold the paper where you make the lines. वेयर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अलोंग द लाइन. जब कभी लाइन से होते हुए है कि लाइन से होते हुए अगर मोड़ना है तो फोल्ड द पेपर अलोंग द लाइंस, कट द पेपर अलोंग द लाइंस. यू कैन स्पीक लाइक दिस. ओके, Yes, sir. तो क्या करना है? फोल्ड द पेपर्स अलोंग द लाइंस. उसके बाद स्टेप 5 कौन बोलेगा? अभी तक जिन लोगों ने नहीं बोला उनको छोड़ के, जिन whoever have spoken, leaving all the students. सत्य प्रकाश, निहारिका, आकांक्षा पांडे, anybody else who want to speak? दिव्या, अलसबा, अतुल, सौरभ, बोलिए स्टेप 5 में क्या हो रहा है? सौरभ कनौजिया, Then cut ruler and draw lines. क्या बोला आपने? So then take a ruler and measure and draw a line. ओके, स्टेप 5 के बारे में और कौन बोल सकता है? अतुल चौहान, स्टेप 5 व्हाट इज हैपनिंग हियर? Fold the page, then middle measure line. Draw middle line. देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक मिडिल लाइन, एक लाइन नहीं बहुत सारी लाइनें बनानी है. तो दैट मीन्स कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको लाइन ड्रॉ करना है. ये तो हुआ है जैसा कि दिखाया गया इस पे. Yes, sir. तो यू हैव टू राइट विद द हेल्प ऑफ द रूलर या बाय यूजिंग रूलर. यू हैव टू ड्रॉ लाइंस, लाइन नहीं लाइंस, फ्रॉम वन एज टू द अनदर एज. ओके, देयर आफ्टर स्टेप 6 में क्या होगा रुचि? Cut the paper on the line sides. कट द पेपर along these lines. on the line नहीं होगा बेटा. along का यूज इसमें कई बार आपको यूज करना. लाइन से होते हुए काटना है ना, Yes, sir. लाइन पे नहीं काटना है, लाइन को भी नहीं काटना है, आपको काटना तो पेपर को है. कट दीज, देखो along the lines, कट दीज पेपर, कट द पेपर along these lines. पेपर को काटिए. अब पेपर को काटने के लिए अगर आप एक जगह यहाँ पे सिर्फ काट दे तो भी कट हो गया, 4 जगह काटे तो भी कट ही बोलेंगे. लेकिन कहा along these lines, इन सारे लाइनों के along, इन सारे लाइनों से होते हुए आप पेपर को काटिए. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ आफ्टर दिस इन स्टेप 7 अलसबा, Open the page that lines you cut. आपको पता है जब कोई चीज फोल्ड किया जाए तो उसको ओपन किया जाता है या अनफोल्ड किया जाता है? अनफोल्ड होता है. ठीक है, अनफोल्ड द पेपर आफ्टर कटिंग इट. जब कटने के बाद जो ये आपने काट दिया था ऊपर, स्टेप 6 में जब आपने कटिंग किया था along the lines, देयर आफ्टर यू नीड टू अनफोल्ड द पेपर. स्टेप 7 में आपको अनफोल्ड करते हुए दिखाया गया है. एंड व्हाट अबाउट इन स्टेप 8? स्टेप 8 में क्या होगा अनिल? Paste the paper. क्या? The paste the paper. फिर से बोलिए. Paste the paper. पेस्ट द पेपर. इसको पेस्ट करते हुए दिखाया जा रहा है. क्यों अतुल? Sir, fold. बेटा फोल्ड, चलिए ठीक है. एनीबडी एल्स? सान्विका, अनुप्रिया, आप लोगों में से कोई इसको बता सकता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन स्टेप 8? यस सान्विका. Yes, fold that. बेटा अभी फोल्ड से अनफोल्ड fold किया, फिर से फोल्ड कर देंगे. फोल्ड से अनफोल्ड किया ना, तो फिर से फोल्ड कर दें. Sir, इसको फोल्ड होगा. हाँ अनुप्रिया आप बताइए. And then we have to fold like a lantern. We have to give the shape like a lantern. आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फोल्ड आप लोग यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं. दैट इज नॉट अ इनकरेक्ट वर्ड, बट कहीं ना कहीं द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी द रोल द पेपर. आपको रोल करते हैं, आप ब्रेड रोल Yes, खाते sir. हैं, इसको फोल्ड तो करते नहीं है.
So you have to roll the paper. Okay? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. In step 8 it is not folded, it is rolled. ये रोल किया गया है. रोल मतलब एक तरीके से जैसे आप कोई भी चीजें, आप चपाती कई बार रोल कर देते हैं, रोल करके खाते हैं रोटी अपने घरों में. तो Yes, sir. Yes, sir. जितने भी आइटम्स खाने वाले मिलते हैं सभी का नाम रोल रहता है. ब्रेड रोल हो या कोई भी और भी कोई रोल होगा, आप लोग को पता होगा ज्यादा. तो इसको रोलिंग कहते हैं. मतलब एक तरीके से अगर आप सीधा इसको गोल गोल घुमा करके एक इस शेप में, बेलन के शेप में आप ले आए, सिलेंडर के शेप में ले आते हैं, तो दैट इज अ रोल. इट इज नॉट फोल्डेड. फोल्डेड मतलब आप सीधा तह देना, तह करना, तो उसको फोल्डेड बोलेंगे. नाउ आफ्टर रोलिंग द पेपर, व्हाट इज नेक्स्ट इन द स्टेप 9? स्टेप 9 में कौन बताएगा? निहारिका. Paste the paper. स्टिक द टू एंड्स. पेपर को आपको स्टिक करना है, पेस्ट करना है. स्टिक द टू एंड्स ऑफ द पेपर टुगेदर विद द स्टिकर, स्टिकिंग टेप. स्टिकिंग टेप से या फिर ग्लू से आप जो एज है, दोनों एज है, मतलब पेपर का दो था, उसको जब आपने रोल किया तो वहां पे केवल आप चिपका दीजिए. ओके? एंड आफ्टर दैट Yes, sir. इन द लास्ट स्टेप, आपका फिलहाल लैंटेन यहीं पे शुरू हो गया, लेकिन आपको एक हैंडल भी तो चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू? हाउ यू हैव टू राइट दिस वन? यस अनुप्रिया. Mm-hmm. Then we have to cut a strip and paste the side. ठीक है. तनिष्का, how will you write this one? Sir, and take the paper and fold. You have to take a rectangular shape of paper. एक तरीके से स्ट्रिप की तरह जो पेपर रहेगा, अलग से पेपर लेना पड़ेगा ना, Yes. जो आपने यहाँ पे एक साइड में कट कर दिया था. फर्स्ट स्टेप, इसको जो आपने काटा था वो कहाँ गया? दिस इज द वन. यू हैव टू टेक दिस वन एंड on the two sides of the lantern you have to paste it as an handle to make. So this is how you have to write. You have to describe the way you have make the paper lantern. Is it clear? Yes, sir. सभी लोग लिख भी ले जाएंगे. सभी लोग लिख भी ले जाएंगे. सभी लोग ऑलरेडी लिखे होंगे. सभी लोग को लगभग आ भी रहे हैं. एक आध दो जगह थोड़ा बहुत वर्ड्स की थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, लेकिन वो गलत नहीं कहा जा सकता उसको. आप लोगों ने जो बताए that was also correct. But now whoever did not write, they should write that कि how this paper lantern can be formed. वो लिखेंगे तभी सीखेंगे, बिना लिखे नहीं सीख पाएंगे. तो राइटिंग सेक्शन में आपका ये है. नाउ कम टू द बुक सी. बुक से में आपको पेपर फैन बनाने के लिए बोला गया है. उसको भी हम इसी सेक्शन में ही आज ही कंप्लीट करेंगे. उसको भी आपको एज एन एक्टिविटी दिया गया था, आपको लिखने के लिए भी बोला गया था. नाउ Right. who is left? बेटा शानुका, you have to wait. सबसे पहला बहुत इजी है. You have to tell the material required material for to make the paper fan. So how you will be writing that thing? Vikas Verma, how will you start? Vikas Verma. Sir, to make a paper fan. Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है. बोलिए. Sir, to make a paper fan, paper string and a pencil are used. स्ट्रिंग क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग क्या होता है? सर, क्या? धागा या सर तार. धागा की इंग्लिश और क्या होगी? धागा का तो थ्रेड मैंने सुना था यार. शान्विका. Yes, sir. Sir, string मतलब sir a strip, sir a type of ribbon. टाइप ऑफ Sir, ribbon. Read. Sir, I think that ribbon is that. Sir, strip. Sir, lines. Sir, of any material. स्ट्रिंग मींस धागा. हाँ या तार. Right string. चलिए ठीक है. स्ट्रिंग Yes. तार एक तरीके से कुछ भी बांधने वाली कुछ भी चीजें कह सकते हैं, लेकिन धागा नहीं बोलेंगे. थ्रेड मींस होता है धागा. रोप मींस रस्सी. तार होता है तो तार को आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ठीक है. So you all are required, first of all,
For making a paper fan, you all are required a paper, string, a pencil. 3 things you all need to have. तो तीनों चीजें आपको आपके घर पे आसानी से मिल भी जाएगा. Now there is a space where you have to write the each and every step. तो आपको ये सभी स्टेप्स आपको 1 by 1 लिखने भी हैं. तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है? Who will speak? सुषमा, आपने अभी तक नहीं बोला. आपने इसको बनाया है कि नहीं? कितने लोगों ने पेपर फैन बनाया है? So बेटा सुषमा, I was asking from you that what is going on in the step first, in the first step. Also I asked that how many have make the paper fan. Paper fan बनाया है, वही लोग इसको बता पाएंगे. तो पिक्चर से एकदम क्लियर नहीं है. Sir, take a paper and fold it. टेक अ पेपर एंड फोल्ड. कैसे आपको फोल्ड करना है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली. अमन वर्मा बताइए. Fold the paper horizontally. वेरी गुड बेटा, आपको फोल्ड करना है हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली इन द फर्स्ट स्टेप. तो व्हाट यू विल राइट हियर, आपको यहाँ पे लिखना है टेक अ पेपर एंड फोल्ड द पेपर, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट हॉरिजॉन्टली. क्लियर? Thereafter, in the second step में क्या करना है? Who can speak? Show me your hand. दिव्या, अभी तक आपने कुछ नहीं बोला. आपने बनाया है या नहीं? अभी लिखना तुरंत शुरू कर दिया आपने. अरे बाद में लिख लेना, थोड़ा दिमाग भी लगाना. उस समय दिमाग पे जोर दोगी तो सब याद आ जाएगा, और तब उस समय जब याद आएगा तो वो याद भी रहेगा. आप एग्जामिनेशन में भी लिख ले जाओगी. अभी आप सुन के छापोगी तो छपाई से आपको मेमोराइज नहीं हो पाएगा. अभी लिख कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन याद नहीं रह पाएगा. तो अभी पेंसिल, रुचि, सुषमा, आप सभी लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत होइए. ठीक है? अगर आप चाहती हो छापना ही तो कहिए मैं लिख दूं, जल्दी जल्दी छाप लो. अभी आप क्लास छोड़ दीजिए, छपाई नहीं होनी चाहिए क्लास के समय. अनुप्रिया बताइए व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेकंड स्टेप. बेटा आप ही 4-5 लोग करते हो, बाकी लोग तो छापने में बैठे हैं. उनको छापने ही दो. आप ही लोग बताओ, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा. माइक ऑन करके. Sir, what is the meaning of flip? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Flip. फ्लिप? Sir, FLIP. फ्लिप मतलब एक तरीके से मोड़ना, फ्लिप करना. Yes. आपका ये भी एक टाइप ही है एक तरीके से. When? Yes. In the second step, we have to flip right and left. We have to flip the paper. Okay, Shamika? Right and left. So, Sir, in second step, start folding and folding the paper in turning pattern horizontally as shown. Okay. so अमन आप बताइए. flip your paper over and fold it again. Flip your paper and fold it. Over and fold it again. अच्छा, आप महक की बुक यूज कर रहे हो मुझे लग रहा है. You have taken the No, help of- sir. अरे नो सर क्या? 100%. चलिए वेरी गुड, आप भी दिमाग लगा रहे हो. नकल के लिए भी अकल चाहिए. ठीक है, जो और बच्चों ने बोला वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है. बेटा फोल्ड के बजाय फ्लिप वर्ड यहाँ पे यूज होगा. फोल्ड मतलब आपने बोला ना कि पूरी तरीके से तह देना, यहाँ पे आपको फ्लिप करना है. फ्लिप और फोल्ड में डिफरेंस क्या होगा? फ्लिप की एक्चुअल मीनिंग क्या होगी? लेट मी चेक दैट की व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्लिप. फ्लिप मीन्स फ्लिपी एक तरीके से है. फ्लिप कैसे किया जाता है? आपका एक होता है कि घुमा के, मतलब घुमाने की होगा, लेकिन एक तरीके से फोल्ड करके एकदम तह देना, बिल्कुल चिपका देना, उसको बोलेंगे फोल्ड. और एक होता है रोलिंग. रोल जो आपने किया था वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोल्ड. पेपर मोड़ने की चीज को एक रोल कहा गया था.
कहीं कहीं आपको फोल्ड कहा गया, यहाँ पे फ्लिप बोलेंगे। फ्लिप मतलब आपके बीच में स्पेस रहेगा, दो पेपर दो साइड्स के बीच में जब आप फोल्ड करते हैं तो दो साइड्स के बीच में आपका बीच में स्पेस रहता है। ठीक है, तो अमन ने फिलहाल सही बताया। फ्लिप द पेपर, क्या बताया अमन, फिर से बताइए। Sir, flip your paper open and fold it again. Flip your paper over and fold it again. Yes, sir. आप इसको फ्लिप करना है फिर जाके फोल्ड करना है। देयर आफ्टर इन द थर्ड स्टेप इट इज नॉट क्लियर इन माई सॉफ्ट कॉपी। थर्ड स्टेप, यस शानुका। बेटा माइक बंद है आपका। माइक बंद। Sir, in third step, continue the turning of the paper. Yes, continuously you have to flip the paper and fold it again and again. In the third step, flip the paper. Continuously you have to flip the paper and repeat the folding. Continuously you have to fold the paper from the one edge to the another one. एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको फ्लिप करके फोल्ड ही करना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है एक तरीके से। अब जो आपका फोर्थ स्टेप है, जो मैंने थर्ड एंड फोर्थ स्टेप दोनों एक साथ में बोल दिया। फोर्थ स्टेप में आपको क्या बताना है, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे है, कंटिन्यूसली यू हैव टू फोल्ड इट, लेकिन कहां तक फोल्ड करना है, टिल द एंड। फोर्थ में दिखाया भी गया है, फोर्थ में क्या लिखेंगे, डू दिस टिल। आपको ये कंटिन्यूसली जो फोल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो आप फ्लिप करने का काम कर रहे हैं, यू हैव डू दिस टिल द एंड ऑफ द पेपर, टिल द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पेपर। अगले किनारे तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक आपको सेम कंटिन्यूसली यही करना है। ओके, Yes, sir. स्टेप 4 में ये बताया गया। स्टेप 5 में व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेप 5, आपको एक एंड पे, एक सिरे पे क्या करना है, फोल्ड। क्या करना है पांचवें स्टेप में, जो आपने यहाँ पे फ्लिप करके आपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद एक किनारे आपको क्या करना है, Turn. एज शोइंग इन द पिक्चर। बेटा तनिष्का कुछ बता सकती हो, व्हाट शुड आई राइट हियर। जब आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ वर्ड्स में क्लियर ना दिखे, जब आपको किसी क्या किया जा रहा है ये आप कह ना पाए, तो सबसे इजी है एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। Yes, sir. मूव या टर्न, जो भी आप वर्ड्स यूज करना चाहें, या आप इसको बोलते हैं तोड़ेंगे तो नहीं, तोड़ने का मतलब अलग कर देना होता है, तोड़ेंगे नहीं, बस एक तरीके से इसको घुमा दें, इसको फोल्ड कर दें। ठीक है, एज शोन इन द पिक्चर, The paper. Yes, sir. Then fold it and You have to turn downward the paper. and give shape like a paper fan. ठीक है, shown in the picture. ठीक है। आप लोग जो समझ में आए, सभी लोग लगभग सेम चीजें बता रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग वर्ड्स में। एक बार मैं भी क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ what you all can write। आप लोग जो लिख रहे हैं अपना सेंटेंस, वो भी गलत नहीं, also you all can write all those words। अगर आप लोग अपना सेंटेंस लिखेंगे then it would be better। आप मेरा लिख ले रहे हैं तो दैट मीन्स की छपाई कर रहे हैं। आपको क्या किया गया स्टेप 5 में जो प्रॉपरली दिख रहा है, जस्ट यू हैव टू पिक वन एंड ऑफ द पेपर जो भी फोल्डेड है, जो ऑलरेडी आफ्टर फ्लिपिंग एंड फोल्डिंग द पेपर्स वी हैव टू फोल्ड, वी हैव टू टेक, वी हैव टू टर्न। फोल्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टर्न बोल सकते हैं, टर्न या फोल्ड ही बोलते हैं। वी हैव टू टर्न और फोल्ड वन कंप्लीट एंड ऑफ द पेपर एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, Yes, sir. Yes. व्हाट अबाउट स्टेप 6? स्टेप 6 में क्या होगा? Sir, अब यहाँ पे क्या किया गया है, sir, take a string for tightening the paper. Sir, take a string for tightening the paper. यस, अनिल भी फिलहाल सही बता रहे हैं, अनिल भी सही बता रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, तार है, उससे आपको जो वन एंड है उसको टाइट करना है। टेक अ स्ट्रिंग एंड टाइट द
फोल्डेड एंड ऑफ द पेपर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. एनी इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन राइट द सेम थिंग्स. कोई दूसरे लैंग्वेज में कौन बता सकता है? कोशिश करिए. सान्विका बताइए. Sir, in sixth step, then tie that bottom corner which you have folded from any rubber band, ribbon, or string. Okay, good. Kanishka, what you can write for the step 6? Sir, take a string to tie the paper. आप टाइट कर सकते हैं या फिर जो आप पेपर के अराउंड भी आप. अमन वर्मा, महक की किताब से देख के बताइए क्या लिखे हैं. नीचे देख, नीचे नहीं, ऊपर आंखें बंद करके. आंखें, एक काम करिए अमन वर्मा, अपना आंखें बंद करिए. Sir, wrap the paper around the end of the paper. और आपने पहले से देख लिया, बस आपने सेंटेंस केवल चेंज कर लिया, ये सब पता है. ठीक है. अमन वर्मा इज ऑल्सो करेक्ट. अमन वर्मा इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू, रैप द स्ट्रिंग. जो आपको यहाँ पे अमन ने बोला रैप द स्ट्रिंग. रैप में मतलब एक तरीके से लपेटना. जो स्ट्रिंग को वन एंड ऑफ द पेपर जो आपका है उसमें क्या करेंगे, रैप कर देंगे. ओके. टाई भी हो सकता है, टाई द पेपर अराउंड द, सर टाई द स्ट्रिंग अराउंड द पेपर. टाइट भी हो सकता है, टाइट ऑल्सो यू कैन डू. आपका रैप करना या टाइट करना बात एक ही तो है. एक तरफ से यहाँ पे टाइट कर दोगी या बांध दोगी. बांधना ही, बांधने की इंग्लिश क्या होगी, टाई ही तो होगा. Yes. यहाँ पे बांधा ही गया, उसको घुमा नहीं देना है. जस्ट यू हैव टू टाइट. जब एक एंड आप टाइट कर देंगे, आप स्वयं पेपर फैन कैसे बनाते हैं, जब इसको टाइट कर देंगे तभी तो यहाँ पे जाकर के ये पेंसिल की नोक लगाएंगे. Yes. स्टेप 7 में क्या होगा? अमन वर्मा का आंसर मैं बता सकता हूँ. अनुप्रिया बताइए. Then we have to end the string. क्या होगा बेटा? Then we have क्या होगा? अनुप्रिया क्या बोला आपने? Then we have to end the string. Anybody else? सौरभ. Sir, then we cut the string that are left. जो भी बचे हैं स्ट्रिंग उसको आप कट कर देंगे, यानी उसको आप एक तरीके से मैनेज कर देंगे. सान्विका बताइए क्या कहना चाह रही है. Sir, in seventh step, put that pencil which you have taken in the ribbon, rubber band, or string to attach it with the fan. बेटा आपको यहाँ पे पेंसिल नहीं रखा जा रहा है. यू हैव, जो आपका जो स्ट्रिंग का जो दूसरा मतलब इधर उधर कोई पार्ट बचा हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू, उसको आप प्रॉपरली एक तरीके से अंदर कर देंगे. क्या करेंगे? अमन वर्मा, व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट इज योर आंसर? Sir, take a pencil and equal the string. ठीक है, ठीक है ना. अभी आप जानबूझ के महक वाला आंसर नहीं बोला आपने. चलिए ठीक है. तनिष्का आप बताइए. Sir, fold the string. जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है उसको कट कर देना है. बिल्कुल सही बात, उसको हटा देना है. यस सर. उसको मैनेज कर लेना है. जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग उसको कट क्या कर देना है, उसको सीधा आप उसी में ही आप पूरा लपेट दीजिए. दैट वुड बी बेटर. इसका कोई बहुत ज्यादा स्टेप नंबर फर्जी में एक तरीके से केवल आपका स्ट्रिंग से आप उसको एक तरफ बांध देंगे, तो जितना ज्यादा मजबूती से बांधेंगे उतना हार्ड होगा, उतना बेहतर होगा. आप लोग पेपर फैन बनाए तो थे ना या नहीं? जब बनाएंगे तब इसको, जब आप स्ट्रिंग के थ्रू जब आप इसको टाइट कर देंगे या फोल्ड कर देंगे या इसके अराउंड आप ऐसे बांध देंगे, तो इसके बाद क्या करना रहता है? आपने क्या किया, सेम वही चीजें तो लिखना है. ये दूसरी तरह पेपर फैन बनाएगा, आप दूसरी तरह बनाएंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना. लास्ट मिनट चल रहा है बेटा. लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जब आपका जो भी स्ट्रिंग फैन बांधने के बाद आपका ये पेपर फैन रेडी हो जाएगा. योर पेपर फैन इज रेडी इन द लास्ट स्टेप. ओके. स्टेप नंबर 7 से कंप्लीट होएगा. स्टेप नंबर 7 में जो भी आपका टाइटली प्रॉपर्ली आपको स्ट्रिंग आपका उसके अराउंड आपको बांध देना है स्ट्रिंग से. दैट इज द एंड ऑफ द
राइटिंग सेक्शन अभी कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछिएगा. योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज्ड. इज देयर एनी क्वेरी अदर? दोनों सेक्शन कंप्लीट कर ले जाएंगे ना सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir.